We are going to start the very first chapter in history, which I had already summarized with the flow chart. That is rise of nationalism in Europe. So to start off, very first of all, क्योंकि ये पेपर का क्वेश्चन है, ये जो पिक्चर बनी हुई है बच्चे, this is going to be there. This was there in one question paper 2 years back, not now. It was, I think, in 2020 or 21. कि ये जो प्रिंट है ये किसने बनाया था. You can see here it is written a print prepared by Frederick Shore in 1848. और ये जो प्रिंट है ये क्या दिखा रहा है, ये एक पिक्चर है जो उसने उस वक्त विजुअलाइज किया था जब आपके यूरोप जो है आज के जैसा नहीं था. मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देन द स्टैचू, एंड देन यहाँ अगर आप देखोगे तो अलग अलग देश के जो फ्लैग्स है वो अलग अलग है, एंड पीपल आर टुगेदर. So this was a print which was prepared by Frederick Shore in 1848, which is one of the important. These are all one marker question. In 1848, Frederick Shore, a French artist, he was a person who belonged to France, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic. This last year ये आया था किसी स्कूल के अंदर. मतलब उसने क्या विजुअलाइज किया था, that the world should have democracy, यानी कि people's government and social republic. The first print shows peoples of Europe and America, men and women of all ages and social class, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. ये देखिए आप यहाँ पे, as they pass. As you would recall, the artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. तो यहाँ उन्होंने देखा है कि एक हाथ में, this is the question which has come, she was having the torch of enlightenment, and दूसरे में charter is the constitution type, rights of man. और नीचे जमीन पर you can see the image lie the shattered remains of symbols of absolute. यानी कि जो ये लोग नीचे है, this is what absolute is, मतलब एक गवर्नमेंट जहां पर the people did not have any rights. और ये आपके पेपर में आ सकता है. What is absolutist? MCQ. In Shore's utopian का मतलब होता है something which actually does not exist, an ideal society जो हो ही नहीं सकता है. The peoples, यहाँ peoples इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि in our political science we use the word peoples for a country. Normally we don't use. The peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags, national costume. तो ये आप देख सकते हो इन्होंने जो जो पहन रखा है, ये फ्लैग्स हैं 1 2 3, ये फ्लैग्स उन्होंने बना रखा और अपने आप को वो आइडेंटिटी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट. लीडिंग द प्रोसेशन वे द पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर यूएस, सबसे आगे यूएस है, फिर स्विट्जरलैंड है क्योंकि वो उस वक्त ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे. फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्रांस का जो फ्लैग था वो. एंड शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी जिनका ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग है.
Interestingly, at the same time when Shore created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principality into a nation state under a democratic constitution. जब आप लोग जर्मनी के बारे में पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि वहां पर जो स्टार्ट हुई थी लड़ाई वो 1848 से 1871 के बीच में था. Okay, at that time you will see 1848 was the period when it started and 1871 was the period when Germany was unified. मतलब उसका कहने का मतलब है कि इवन बिफोर ऐसी लड़ाइयां स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही दिस प्रिंट वाज मेड. ये आपको समझना नहीं है, आपको जो जो समझना दैट आई विल अंडरलाइन. Following the German peoples are the people of Austria, Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, Russia. और ऊपर से the Christ, Saint, angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity, मतलब brotherhood. Fraternity का मतलब होता है भाईचारा. Now, what is this chapter about? This chapter will deal with many of the issues. यानी कि हम लोग जो है सारे के सारे नेशंस कैसे एक हुए थे इसके बारे में पढ़ेंगे. आपके पेपर के अंदर ये जो सोर्स ए लिखा है, सोर्स ए, सोर्स बी, सोर्स सी, दिस मे कम एज अ क्वेश्चन. आपको पूरा ये दे दिया जाएगा और इससे आपको आंसर्स लिखने होंगे. So this is during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result was the emergence of nation states. Nation states होता है जिसको आज हम कहते हैं a single country. Instead of the multinational dynastic empires of Europe. The concept and practices of a modern state in which centralized power exercise sovereign control over a clear defined territory. क्योंकि पहले ऐसा नहीं था. अगर एक जगह 4 हिस्सों में बटा होता था तो कुछ भी कहीं पर भी होता था. Anybody could rule. There was no system. But a nation state was the one in which majority of its citizens and not by the rulers came to develop a sense of common identity, shared history and descent. ये आपका जो है, this is the definition of nation state. ये आपका definition है. मतलब what is the meaning of nation state? Nation state होता है जहां लोग एक तरह के होते हैं, मतलब somewhere they have something common and then they would be ruled by a person जो उनके common interest को देखेगा. पहले ऐसा नहीं होता था, जहां रूलर रहते थे उसके नीचे जो भी रहता था वो रूल करते थे. So we have to start off. तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे to the 9th standards French Revolution. वहीं से आएगा ये वाला जो आपका पैराग्राफ है. दिस इज देयर एज योर क्वेश्चन ऑल्सो कि व्हाट वर द measures used by the French revolutionaries to create a sense of collective identity. This is a question from the boards. ये आपके CBSE का ही क्वेश्चन है कि उन्होंने ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए थे जिससे कि वो एक देश कहलाए. मतलब व्हाट वर द मेजर्स दे हैड टेकन. ये आपका एक क्वेश्चन है which has been coming in the paper many times. यानी कि काफी important है. You can see how long this chapter is. Question number 2. What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? This is the one. This is the question which I said कि हम लोगों को अभी पढ़ना है. तो सबसे पहले we are moving towards
फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में खत्म किया था, और हम लोगों ने कहाँ खत्म किया था कि जब आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था एंड व्हेन इट एंडेड, जब वो एंड हुआ था तो नेपोलियन बोनापार्टे हैड असेंडेड ओवर द पावर. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम अप. ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके पेपर में आया है. As you would remember, was a full-fledged territorial state in 1718 under the rule of absolute monarch. That is आपका Louis XVI. The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to body of French citizen. पहले आपका जो था लुइस 16 था, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, उसके बाद वो रिपब्लिक बना, फिर डायरेक्टरी हुआ, उसके बाद उसमें वहां पर जो है रूल आया ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, दैट इज डिक्टेटरशिप. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of. तो उन्होंने क्या क्या किया था, ये पूरा आपका पेपर में आता है, आया हुआ है और आ सकता है. फर्स्ट, द आइडियाज ऑफ ला पेत्रे. हम लोग क्या बोलते हैं, मदरलैंड, मातृभूमि, और वो क्या बोलते थे, पितृभूमि, फादरलैंड. ले सिटोयन यानी कि सिटीजन, दैट इज सबको इक्वल राइट्स देना. अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग. उन्होंने एक नया फ्लैग डिजाइन किया. तीसरा, द एस्टेट जनरल, अगर आपको याद हो, इन द टेनिस ग्राउंड ऑफ वर्सलीज आपका जो है एस्टेट जनरल जो है वो गया था, और उनको उन्होंने नया नाम दिया था नेशनल असेंबली. दैट इज आपके सारे के सारे थर्ड एस्टेट के लोग थे. एंड द पीपल वर कॉल्ड एज एक्टिव सिटीजन्स ओनली दोज हु वर पेइंग द टैक्सेस, हु वर अबाउट 25, उनको दिया गया था. न्यू हाइम्स, हाइम्स होते हैं, वैसे तो बेटा हम लोग हाइम्स बोलते हैं, हमारे जो हम लोग जो मंत्र बोलते हैं, यहाँ पर इट इज फॉर द सॉन्ग. ओथ टेकन, मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, मतलब मार्टियर्स होते हैं जो देश के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करना. A centralized administrative system was put and formulated uniform laws within its territory. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड. ये सारा तो उसने किया था, नेपोलियन बोनापार्टे ने, जो भी आप बाद में भी पढ़ोगे. रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस को हटाकर फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज किया था. तो दीज वर सम ऑफ द मेजर्स. आपके 3 या 5 दोनों आ सकते हैं. मतलब दे वांटेड दैट वी ऑल बिलोंग टू द सेम नेशन. The revolutionaries further declared that was a mission and destiny of French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. Despotism का मतलब होता है the rule of people who do not care for their citizens. When the news of events in France reached to other different cities, students, members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. जैसे यहाँ हुआ था वहां भी, क्योंकि जैकोबिन क्लब की वजह से ही फ्रांस जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ था. नेशनल असेंबली की वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland. मतलब इन जगहों पर जो है फ्रांस का जो भी आइडियाज थे दैट वाज स्प्रेड अप. फ्रेंच के जो आर्मीज थे वो इन आइडियाज को हर जगह लेकर जा रहे थे. इफ यू सी, दिस इज अ मैप ऑफ यूरोप. दैट इज ये 1815 के बाद है. 1815 से पहले ऐसा नहीं था. उस वक्त में ऑटोमन एम्पायर जो है ये पूरा का पूरा इन सब एरियाज को कवर करता था. अभी तो इजिप्ट अलग है, देन जॉर्जिया, आर्मेनिया ये अलग है. दे आर ऑल सेपरेट कंट्रीज.
Then Poland is a separate country. Prussia is now not there. It is in fact Germany. France is there. Then Switzerland is there. Spain is there. तो इनमें से कई चीजें नहीं थी. Now what are the Napoleonic Code? जब पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, then directory, and ultimately it was Napoleon who had ascended the power. तो उसने क्या क्या चेंजेस किए थे? Within the wide swathe of territory that came under his control, Napoleon set up introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो क्या क्या था? Though through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but क्योंकि उसने dictatorship establish किया था, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles जिसको बोलते हैं Civil Code of 1804 या फिर Napoleonic Code. इसको सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. तो क्या क्या था उसका? These are the one. He did away with all the privileges based on birth. पहले क्या था? फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट को सारे के सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, बट वो उसने हटा दिया. Established equality before law and secured the right to property. पहले प्रॉपर्टी के राइट सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड को थे, वो भी हटा दिया. This code was exported to the regions under French control. मतलब जहां जहां उसने कंट्रोल किया था, वहां वहां उसने ये सारे के सारे जो कोड है उसको अपनाया था. He simplified administrative division, abolished the feudal system. पहले क्या था? जो गांव के अंदर जैसे हमारे यहाँ जमींदार होते हैं, वैसे फ्यूडल्स होते थे, लॉर्ड्स होते थे, वो लोग कंट्रोल करते थे, उसे हटा दिया. Freed the peasant from serfdom. Serfdom का मतलब होता है स्लेवरी. Manorial dues. मेनर होता है एक बहुत बड़ा, जैसे हमारे यहाँ पर हम बोलते हैं सरपंच, मेनर द ओनर, उसका उसको उसके लिए काम करने के लिए जो पैसा देना. इन द टाउन्स टू गिल्ड. गिल्ड होता है आपके टोल टैक्सेस वर रिमूव्ड. Transport and communication systems were improved. Peasants, artisan, worker, and new businessman enjoyed a newfound freedom. मतलब उसने काफी चीजें peasants के लिए, farmers के लिए, businessman के लिए किया था. जैसे business and small scale producers of goods in particular began to realize a uniform law, standardized weight and measure system. पहले स्टैंडर्ड नहीं था. अगर आप यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जाओगे तो एक मतलब कि जो मीटर है उसके अलग अलग मेजर्स होते थे, उसने एक स्टैंडर्ड किया. कॉमन नेशनल करेंसी एंड फैसिलिटेटेड द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन. यानी कि उसने बिजनेस ट्रेड के फील्ड में काफी चीजें की. बट however, in the areas conquered, the reactions of local population or to French rule were mixed. कुछ लोगों को तो लगा था, such as Holland, Switzerland, as well as certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw. Milan आपका जो है Italy, Warsaw, Poland. The French armies were welcomed as harbingers of liberty. शुरू शुरू में तो उनको लगा था कि ये जो फ्रेंच आर्मी यहाँ आई है ये उनके लिए लिबर्टी लाई है. But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. क्यों? क्योंकि there was increased tax, censorship. censorship का मतलब होता है मीडिया में क्या दिखा सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, उन पर पाबंदी. forced conscription into French armies, मतलब लोगों को जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करना पड़ता था. All seem to outweigh the advantages of administrative changes. इसी वजह से
लोग जो है वो नेपोलियन के खिलाफ हो गए एंड अल्टीमेटली ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। और ये जो पिक्चर है, अगेन दिस केम 2 years बैक, ये पिक्चर दिखा रहा है, ये नेपोलियन का एक मतलब की पिक्चर है जिसे उसे पोस्टमैन की तरह दिखाया है। आपको ये सब नहीं लिखना, आपके पेपर में लिखा हुआ आएगा ये, मतलब वो बेचारा जो है सब कुछ एक एक करके हारता हुआ जा रहा था। सो ही वॉज डिफीटेड इन 1815 बैटल ऑफ वाटरलू। नाउ क्या हुआ, ये हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा है वो है आपका जब तक नेपोलियन वॉज द रूलर एंड धीरे धीरे उसने फ्रांस को छोड़कर बाकी जगहों पर जब उसने एनेक्स किया था, अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा था, एनेक्स मतलब उसने फ्रांस को, उन जगहों को फ्रांस का हिस्सा बना दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, देयर वॉज अ बैटल and ultimately 1815 में Napoleon was defeated in the battle of Waterloo and ultimately the peace treaty was signed in Vienna. What we know today as Germany, Italy and Switzerland, आज तो हमें पता है जर्मनी मतलब जर्मनी का कैपिटल क्या, बर्लिन, इटली मिलान, स्विट्जरलैंड बर्न, लेकिन उस वक्त में they were divided into kingdom, duchies and cantons, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स होते थे जहां रूलर्स के अपने रूल्स होते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ऑटोक्रेटिक मतलब जो राजा है एंड ही विल नॉट बी गिविंग द पावर टू एनीवन, जब तक वो है उसके बाद उसका बेटा, विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच ही लिव डाइवर्स पीपल, और वहां जो लोग रहते थे वो अलग अलग थे। लाइक जर्मनी के अंदर जर्मन, फ्रेंच, फ्रांस, स्विस सब मिलके रहते थे, अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अभी क्या है कि वो लोग वहां सेटल हो गए हैं। दे डिड नॉट सी themselves sharing a collective identity or common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. द हैब्सबर्ग एम्पायर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ruled over Austria and Hungary, was a patchwork of many different regions and people, जिसमें अल्पाइन रीजन यानी कि आपका द एल्प्स वाला एरिया, टायरल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड, ये सारे के सारे थे। It also included Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar और half अलग अलग। इन गलीशिया द एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो रिच पीपल होते थे वो पॉलिश बोलते थे यानी कि पोलैंड की भाषा, और बाकी जो लोग थे वो अलग अलग बोलते थे। Besides, these three dominant groups also live within the boundary: Bohemians, Slovaks, Slovens, Croats and Romans. यानी कि एक एरिया के अंदर अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगह के लोग रहते थे एंड दे वर नॉट शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये दो हिस्सा बोलती हूँ तो यहाँ में फ्रांस रहते थे, यहाँ में फ्रांस रहते थे, यहाँ पे जर्मनी रहते थे, यहाँ पर जर्मनी रहते थे। अब एक्चुअल में इसको एक होना चाहिए और इसको एक होना चाहिए, बट इंस्टेड वहां पर क्या होता था, सब कुछ उल्टा होता था, एक एरिया में अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। So what happened after 1815? The socially and politically and landed aristocracy was the dominant class. मतलब बेसिकली जो रिच पीपल होते थे वो डोमिनेट करते थे ओवर द पुअर। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional division. They owned estates, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, हाउस थे। They spoke French, उस जमाने में और इवन आज भी फ्रेंच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट what you call as respectable language. Their families were often connected by ties of marriage.
This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of peasantry, यानी कि peasants. To the west, जो आपके लोग थे, bulk of the land was formed by tenants, यानी कि जो लोग रेंट पर रहते थे, small owners. And ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल यूरोप में देयर वर सर्फडॉम मतलब आपका बंधुआ मजदूर. मतलब अगर हम यूरोप का मैप देखते हैं, इफ वी लुक एट द मैप ऑफ यूरोप, तो जो अगर हम लोग वेस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या था कि बड़े बड़े जो आपके लोग होते थे वो लोग अपने लैंड को रेंट पर देते थे. और जो इधर ईस्टर्न वाले यूरोप है यहाँ पर क्या करते थे, लैंड में उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर काम करते थे. दिस इज वाज द डिफरेंस. In western and central part, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आई, सबसे पहले इंग्लैंड में आया, but in France and part of German state it occurred only in 19th century. So जब आपकी इंडस्ट्रीज आए तो वर्किंग पॉपुलेशन आया, मिडिल क्लास पीपल आए, प्रोफेशनल्स आए. वेरस ईस्टर्न यूरोप वगैरह में ये सब बहुत बाद में आया. Not a very important. अब आपके आएगा यहां से important one. What did liberal nationalism stand for? मतलब उस वक्त जो वो लोग सब लोग कहते थे we want liberty, तो what was that? क्या था वो? Ideas of national, ये आपका 1 marker question है which may come in your exam. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to ideology of liberalism. मतलब freedom. For the new middle class, freedom मतलब individual, उनको freedom, equality, and politically they all wanted was suffrage. Suffrage मतलब right to vote. उस वक्त universal नहीं था. Universal होता है एक पर्टिकुलर एज, जैसे हमारे यहाँ 18 years है. इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. मेन विदाउट प्रॉपर्टी, पहले वही होता था कि जो रिच होते थे, राइट टू वोट जो था वो सिर्फ आपके उन्हीं लोगों के लिए था जिनके पास प्रॉपर्टी होता था. जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, विमेन जो थी, दे वर नॉट. However, Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor. मतलब उनके तो कोई भी right नहीं था. Throughout the 19th century, early century, women and non-proprietor men organized opposition movements and demanded equal political rights. उस वक्त no person had equality in the political sense. यानी कि right to vote was given only to few people. In the economic sphere, liberalism stood for freedom of market. मतलब जो बिजनेसमैन थे वो चाहते थे कि जो वो बिजनेस करते हैं उनमें उनको फ्रीडम मिले. Let us take the example of German speaking regions in the half of 19th century. Napoleonic administrative measures had created out of countless principal confederation of 39 states. Each of these possess its own currency, weights and measures. अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखें 39 स्टेट्स में अपनी 39 करेंसी थी, अपने वेट का सिस्टम था, अपने मेजरमेंट का सिस्टम था. यानी कि अगर एक बिजनेसमैन को हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक जाना है तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स जो है पास करना पड़ेगा और हर कस्टम बैरियर में उसे 5% जो है देना पड़ेगा. अब प्रॉब्लम क्या थी, सबकी अपनी करेंसी थी. ड्यूटीज वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट एंड हर एक का अपना वेट और मेजरमेंट का कैलकुलेशन था. आपके पेपर में आता व्हाट इज एन एल. एल इज द मेजरमेंट ऑफ क्लोथ. तो हर एक जगह पे, जैसे अगर आप फ्रैंकफर्ट में जाओगे तो वहां पे 54.7, मेन्स में 55.1,
न्यूरमबर्ग में 65.6 एंड फ्राइबर्ग में 53.5, यानी कि देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी। अभी हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, वी हैव अ यूनिफॉर्मिटी नाउ, लेकिन ऐसा नहीं था। और इसीलिए जितने भी बिजनेसमैन थे उन लोगों ने प्रशिया में एक ट्रेड यूनियन स्टार्ट किया था, कस्टम्स यूनियन स्टार्ट किया था, विच इज कॉल्ड एज ज़ोल्वेरीन। ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज ज़ोल्वेरीन? What was Zollverein? Zollverein was a customs union जो लोग चाहते थे to abolish the tariff fears, reduce the number of currencies, क्योंकि हर जगह पे अपनी करेंसी थी, so they wanted कि there should be a uniformity in business. The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. तो हर जगह पर अगर हम लोग देखते हैं, in different areas of Europe, different people had different aspirations. Politically लोग चाहते थे, they needed equality in law, equal rights for voting. इकोनॉमिकली वो चाहते थे इक्वल यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर, यूनिफॉर्मिटी इन आपके करेंसी। तो दिस वाज द पोजीशन ऑफ द पीपल इन यूरोप। अगर हम पीजेंट्स का देखते हैं तो इन द वेस्टर्न यूरोप द पीपल टुक द लैंड ऑन रेंट, एंड अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो वहां पर सर्फडॉम जो है वो मतलब की प्रैक्टिस किया जाता है। So what happened after 1815? कंजर्वेटिज्म का मतलब हो जाता है पुराने ख्यालों के अकॉर्डिंग चलाना, दैट इज द रूल ऑफ द मोनार्की विथ मॉडर्न डेवलपमेंट। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. वो बिलीव करते थे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे पहले था मतलब मोनार्की, चर्च, सोशल हिरार्की मतलब डिवाइडिंग द कंट्री इनटू 3 estates, प्रॉपर्टी। मोस्ट कंजर्वेटिव्स however did not propose a return to society. वो पहले जैसा नहीं, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन चाहते थे जिससे कि पावर इज मोर इफेक्टिव, अ मॉडर्न आर्मी, efficient bureaucracy, a dynamic economy, abolition of feudalism and serfdom. ये वो ऐड करना चाहते थे अपने पुराने रूल के साथ, क्योंकि पहले आपकी आर्मी मॉडर्न नहीं थी। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो लोग काम करते हैं इन द गवर्नमेंट। डायनामिक इकोनॉमी मतलब चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड फ्यूडलिज्म मीन्स जो मैंने आपको बताया था, द रूल ऑफ द रिच, द फ्यूड लॉर्ड्स, उसको अबॉलिश करना चाहते थे। तो क्या किया उन्होंने? इन 1815 the representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था, met at वेना, वेना इज अ प्लेस, और उन्होंने एक नया रूल, एक ट्रेटी, एक एग्रीमेंट बनाया जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु होस्टेड द कांग्रेस एट वेना। आपका पेपर का जो क्वेश्चन है वो है हु होस्टेड, कांग्रेस का मतलब होता है असेंबली। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रेटी ऑफ वेना, और उस वक्त में साइन हुआ था ट्रेटी ऑफ वेना, और उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे वो ये है। व्हाट वर द चेंजेस इन ट्रेटी ऑफ वेना? The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French, was restored to power. The France
lost the territories it has annexed under Napoleon. जो नेपोलियन ने फ्रांस के साथ में जोड़ दिए थे उसको हटा दिया गया था. A series of states was set up on the boundary of France to prevent French expansion. Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, जो है वो फ्रांस के नॉर्थ में आ गया. Geneva was added to Piedmont in the south, नीचे की तरफ आ गया. Prussia, जो आज की डेट पे हम जर्मनी का बोलते हैं, was given important new territories on its west frontiers, while Austria को पूरा कंट्रोल दे दिया गया of northern Italy. But the German Confederation of 39 states को कुछ नहीं किया गया. Russia was given part of Poland, while Prussia was given part of Saxony. यानी कि एक नया मैप तैयार हुआ जिसमें पोलैंड का कुछ हिस्सा रशिया को चला गया, सेक्सोनी का कुछ हिस्सा प्रशिया को चला गया, फ्रांस को जो है एक अलग नेशन बनाकर उसके लेफ्ट में नेदरलैंड्स, नीचे की तरफ पेडमोंट, जिनीवा ऐसे ऐड किया. द कंजर्वेटिव रीजन्स, और अब बोर्बोन डायनेस्टी वापस आ गई थी स्पेन वगैरह में. इट वाज ऑटोक्रेटिक. प्रॉब्लम क्या थी? They did not tolerate criticism and dissent. Dissent मतलब अगर उनके खिलाफ कोई बोलता था उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था. Anybody who questioned the legitimacy, वो उसको जो है चुप करवाते थे. Most of them imposed censorship law to control what was said in newspaper, book, play, song. मतलब कुछ भी आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते. The memory of French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. But on the other hand, जो लोग थे, liberals थे, they wanted that there should be freedom, liberty, there should be freedom of press. ये वो चाहते थे. So now what happened? How did the people start? अब हम start करते हैं यहाँ से. तो अभी तक बच्चे हम लोगों ने क्या पढ़ा है मैं एक बार आपको समराइज करवाती हूँ बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट. अभी तक हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा दैट देयर वाज एन आर्टिस्ट जिसने बहुत सालों पहले डिजाइन किया था एक ऐसा प्रिंट जिसमें उसने दिखाया था कि लोग जो एक जैसे हो, दे शुड बिलोंग टू वन स्टेट. देन वी स्टडीड दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान the people were inspired by La Patrie Citoyenne, a single national flag, a single national language, French. और ये जो ideas थे they were spread across to Europe. नेपोलियन जो था उसने स्टार्टिंग में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए थे, बट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि वो धीरे धीरे पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता था एंड कई जगहों पर उसने फ्रीडम को खत्म कर दिया था. इसीलिए द पीपल वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू. फिर हमने पढ़ा वहां पर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा था. पॉलिटिकली द पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स एंड इकोनॉमिकली हमने पढ़ा दैट द पीपल डिड नॉट हैव, जो बिजनेसमैन थे उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता. फिर हमने पढ़ा द ट्रीटी ऑफ वेना, यानी कि विच वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन ड्यूक मेटरनिच, और इसके अंदर जो है आपके जो पुराने जो मोनार्की से उनको दे दिया गया, एक नया मैप बनाया गया. फ्रांस के लेफ्ट में नीदरलैंड को डाल दिया, नीचे जिनीवा को डाल दिया, जर्मनी प्रशिया को कुछ एरियाज दे दिए, रशिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया और एक नया मैप तैयार हुआ. लेकिन जो एरिस्टोक्रेट्स एंड जो कंजर्वेटिव्स रूल करते थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे that there should be any question, उन्हें कोई भी क्वेश्चन ना करे, और इसीलिए लोग उनसे परेशान थे. So they started their revolution, जो आज हम पढ़ेंगे the first, the revolutionary. We would be studying only till 2.4 today. During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. मतलब उनको जो है अंडरग्राउंड का मतलब होता है जाकर छुप जाना.
Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread the ideas. चोरी छुप के आपके societies होते थे, which I had that day told you, Mazni. To be revolutionary at this time means commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. सब लोग चाहते थे एक नेशन स्टेट, लेकिन चोरी छुपे क्योंकि दे वर वेरी स्केयर्ड कि उनको पकड़ लिया जाएगा. और एक ऐसा ही था गिसप मजनी. आपके पेपर में आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिसप मजनी. He was born in Geneva. Geneva is in Switzerland. He became a member of the secret society of Carbonari. और at 24 उनको एग्जाइल यानी कि जंगल में भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश की थी. बट he subsequently found 2 more societies. यंग इटाली, ये पेपर का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है. The 2 secret societies found by Gisab Mazni. Young Italy in Marseilles, that is in France, and Young Europe in Bern. और इसके जो मेंबर्स थे वो पोलैंड, फ्रांस, इटली सब जगह से थे. मजनी का मानना था गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स. So Italy could not continue to be patchwork of small states. अभी आप पढ़ोगे, जब इटली को पढ़ोगे तो आप देखोगे ऊपर स्पेनिश रूलर्स थे, नीचे कोई और रूलर था, अलग अलग रूलर्स थे. This it can be forged into a single unified republic within wider alliance. The unification alone could bring the basis of Italian liberty. तो उसने कई सोसाइटीज फॉर्म किए थे इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड. और उसको जो है उसके इस बिना डरे हुए इस मतलब उसके लिए मेटरनिच उसको बोलता था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर. ये पेपर में आपके 2 तरीके से आता है. Who was called as the most dangerous enemy of social order by Metternich, या फिर who called Gisep Mazzini as the most dangerous enemy of social order, Metternich. Very, 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 very important. From here, when we start, okay, I'll continue with this. We will do this till here. जैसे जैसे आपके मतलब दिस वाज हाउ पीपल धीरे 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 चोरी छुपके सोसाइटीज बना रहे थे. द सोसाइटी हियर इज नॉट द वन व्हिच वी आर यूजिंग. सोसाइटी हियर मींस अ स्मॉल पॉलिटिकल क्लब्स, जैसे आपके जैकोबिन्स थे वैसे. एज कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, जैसे जैसे वो लोग अपने पावर पर कब्जा करना चाहते थे, जो लिबरलिज्म यानी कि जो लिबर्टी चाहते थे, नेशनलिज्म, जो लोग नेशन स्टेट्स चाहते थे, वो और revolutionists हो गए. Specifically in Italian and German states, in the provinces of Ottoman Empire, Ireland, Poland, काफी यहाँ पर जो है एजुकेटेड एलिट्स जो थे, जिसमें स्कूल गोयर, टीचर्स, क्लर्क, कमर्शियल मिडिल क्लास, प्रोफेसर सब थे. सबसे पहला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, which was there in 9th standard in France in July 1830. The Bourbon dynasty had been restored to power during the conservative reaction after 1835, and this was now overthrown by the liberal revolutionaries who installed constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. और ये आपका पेपर का अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold. मतलब फ्रांस में कोई छोटा सा भी चेंज होता था तो उसकी जो हवा होती थी दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप. एंड दिस इज व्हाई जुलाई में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से बेल्जियम ब्रेक अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, और बेल्जियम एक अलग सा नेशन बन गया. ये वाला आपका जो है इंपॉर्टेंट है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीक इंडिपेंडेंस या
when and by which treaty was Greece recognized as an independent state? ये दोनों आ सकते हैं. 3 marker question है या 1 marker. ग्रीस जो है, it had been the part of Ottoman Empire. Ottoman Empire comprises of the Islamic rule. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among Greek. क्यों? क्योंकि ग्रीक जो है काफी पुराना कल्चर है. Nationalists in Greece got support from Greeks living in exile and from many West Europeans who had sympathy for ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization. Cradle होता है झूला, पालना, और इसीलिए सभी ने उनको पब्लिक सपोर्ट किया अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर. द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स, उसने पैसे इकट्ठे किए. He even went to fight where he died because of fever in 1824. And ultimately, with the Treaty of Constantinople 1832, Greece एक अलग nation जो है वो recognize हुआ. This is a 1 marker question. By which treaty? 1832. या फिर मतलब कि when was Greece recognized as a separate nation? So this is how Greek जो है that got its power. मतलब अब हम पढ़ेंगे कि what is the meaning of that. Greece जो है बेटा, it had its own old kind of culture. ग्रीस आज भी हम लोग ग्रीक गॉड्स बोलते हैं. इनफैक्ट हमारे यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है उसको ग्रीक गॉड बोला जाता है because they are called as the starting of civilization, specifically in Europe. But unfortunately, Greece was annexed to Ottoman Empire. And Ottoman Empire जो है, it was ruled by Muslims. और Muslims के जो है अपने कल्चर है, ग्रीक का अपना कल्चर था. So what to do? Many people, जब फ्रांस में हुआ तो उन लोगों ने भी आवाज उठाई, उनको सपोर्ट किया पोएट्स, जो लोग राइटर्स, कॉमन पीपल ने सपोर्ट किया. एंड अल्टीमेटली it was recognized as a separate state in 1832 by Treaty of Constantinople. So this is what we would be reading till now. In the next, of course, we will be read about the other states like Germany, then Italy, then what happened in the what happened specifically in Britain, and later on what were the events that led to the First World War.